ایک جنگل میں راڈو چڑیا رہتی تھی۔ اس کا مچھلی کا کاروبار تھا۔ وہ خوب دل لگا کر کام کرتی تھی اور اسے اس کا پھل بھی ملتا تھا۔ گرمیوں کا موسم اب ختم ہونے کو تھا، سردیاں اب شروع ہو چکی تھیں۔ ایک دن راڈو چڑیا کے گھر گوپی کوی آتی ہے اور بولتی ہے، راڈو غضب ہو گیا، تمہیں پتا ہے کاجو کوا کو آج اس کے مالک نے نوکری سے نکال دیا۔ میرا پتی ایک جگہ ٹک کر کام ہی نہیں کرتا، میں تو تنگ آ گئی ہوں، روز کام چھوڑ کر آ جاتا ہے یا اس کا مالک اسے نکال دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا حل نکالوں اس کاجو کوے کا؟ تم کہاں کی تیاری کر رہی ہو؟ یہ سامان کس چیز کا ہے؟ گوپی کوی بتاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، کاجو کوا ٹھیک ہو جائیں گے، آپ انہیں سمجھایا کریں، اور یہ سامان میرے نئے کاروبار کا ہے۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں نا، تو میں نے سوچا فش بیچنا شروع کر دوں، بس ادھر کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے پتا یہی کام کرتے تھے۔ راڈو ایک تم ہو جو کام میں مصروف رہتی ہو اور ادھر میرا پتی روز کام چھوڑ آتا ہے۔ ویسے راڈو برا نہ مانو تو ایک بات بولوں، میرے کاجو کوا کو بھی اپنے ساتھ کام پر رکھ لو، ویسے بھی تمہارا کام زیادہ ہے، اکیلے کیسے سنبھالو گی؟ کوئی ساتھ تو چاہیے ہی ہوگا، اس لیے میرے پتی کو رکھ لو، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ٹھیک ہے گوپی کوی، آپ پریشان نہ ہو، میں نے کسی اور کو بھی تو رکھنا ہے، تو کاجو کوا کو رکھ لیتی ہوں۔ آپ ہمارے جاننے والے بھی تو ہیں، مجھے یاد ہے میرے پتا کا مچھلی کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے 10-12 ہیلپر رکھے ہوئے تھے۔ پھر راڈو اپنی مچھلی کی دکان کھول لیتی ہے اور کاجو کوا کو بھی ساتھ رکھ لیتی ہے اور دل لگا کر محنت کرتی ہے۔ راڈو چڑیا کی مچھلی پورے جنگل میں مشہور ہو جاتی ہے اور جو بھی کھاتا ہے راڈو کی بہت تعریف کرتا ہے۔ مچھلی لے لو، مچھلی لے لو، گرما گرم مچھلی لے لو، تازے پانی کی مچھلی، نہروں کی مچھلی، دریاؤں کی مچھلی، گندے پانی کی مچھلی، میرا مطلب اچھے پانی کی مچھلی۔ یہ کیا بول دیا میں نے؟ کاجو کوا کیا بولی جا رہے ہیں؟ گندے پانی کی مچھلی؟ کیا میری دکانداری خراب کرنی ہے کیا؟ کچھ سوچ سمجھ کر بولا کریں، یہ میرے پتا جی کا بزنس ہے اور میں آگے بڑھا رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ یہ خراب ہو، اس لیے احتیاط سے بولیں۔ شکر ہے کسی نے سن نہیں لیا، ورنہ لوگ کیا سوچتے کہ میں گندے پانی کی مچھلی بیچتی ہوں۔ مجھے یاد آیا، آپ چکور مچھوارے کو آرڈر دے آئے تھے نا مچھلیوں کا کہ نہیں؟ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کی مچھلیاں صاف ہوتی ہیں۔ کاجو کوا، آپ چکور مچھوارے سے مچھلیاں لے آئیے گا، پچھلے مہینے بھی آپ مچھلیاں لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے راڈو، لے آؤں گا۔ لیٹ مجھے اس لیے ہو گئی تھی کہ مجھے اس دن کوئی کام تھا تو راستے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ راڈو مجھے یاد آیا گوپی کوی نے بولا تھا آتے ہوئے تم سے کچھ پیسے ایڈوانس لے آنا، پھر تنخواہ میں سے کٹوا دوں گا، گھر کا کچھ سامان لانا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے ہم غریبوں کی زندگی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور گھر کے خرچے پورے ہی نہیں ہوتے، ابھی گھر رینٹ بھی دینا ہے، ہو سکے تو کچھ پیسے ایڈوانس دے دو، پھر مچھلیاں لینے نکلتا ہوں۔ جی کاجو کوا، لے جائیے پیسے، آپ پریشان نہ ہو، آپ گوپی کوی کو پیسے دے دیجئے، وہ گھر کا سامان لے آئیں گی۔ کاجو کوا، آپ پچھلے مہینے بھی تو پیسے ایڈوانس لے کر گئے تھے، وہ بھی آپ نے بولا تھا تنخواہ سے کٹوا دیں گے۔ مجھے یاد نہیں رہا
चले कोई बात नहीं, इस महीने कटवा दीजिएगा। अब आप जाइए, मछलियाँ भी ले आइए। राडो काजू कौवा को पैसे दे देती है और काजू कौवा मछलियाँ लेने चला जाता है। लेकिन काजू कौवा कबूतर मछुआरे के पास चला जाता है। कबूतर मछुआरा अपने 2 नंबर काम की वजह से बहुत मशहूर था। वो गंदे पानी की मछलियाँ बेचता था। गंदे पानी की मछलियाँ होने की वजह से वो दुकानदारों को मछलियाँ उनके असल रेट से कम कीमत पर बेचता था और काजू कौवा उसी से मछलियाँ लेने आया था। और भाई काजू कौवा आ गए मछलियाँ लेने। तुमने मुझे बोला था ना कि तुम्हारा ऑर्डर पहले तैयार करके रखूं जब भी मछलियाँ आए। तुमसे पहले एक पक्षी आया था मुझसे मछलियाँ लेने। मैंने उसे इसलिए नहीं दी कि पहला ऑर्डर तुम्हारा है। मैंने उसे बोल दिया कि जब दोबारा मछलियाँ आएंगी तो फिर उसकी बारी आएगी। पहले मेरे रेगुलर कस्टमर काजू कौवा को मछलियाँ मिलेंगी, क्योंकि मुझे अपने ग्राहक थोड़ी खराब करने हैं। जाहिर सी बात है, तुम मुझे कीमत भी उसी वक्त अदा कर देते हो। एक हाथ से माल लेते हो और एक हाथ से पैसे देते हो, और मैं उधार रखने वाले ग्राहकों को जल्दी ऑर्डर नहीं देता। जो पैसे देते हैं वही सबसे पहले माल भी लेकर जाते हैं। क्यों भाई काजू कौवा, पैसे लाए हो? मैंने तुम्हारा ऑर्डर तैयार करके रखा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कबूतर डॉन, मेरा ऑर्डर तैयार करने के लिए, मगर तुम्हारी वजह से मुझे अपनी दुकान मालिक की बातें सुननी पड़ती हैं। वो पिछली दफा भी बोल रही थी कि ऑर्डर क्यों लेट हो गया, और इस दफा भी वो मुझे बोल रही थी कि ऑर्डर लेट नहीं चाहिए उसे। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई दुकान पर। पहला ऑर्डर तो तुम मुझे दे देते हो, मगर वो भी लेट। मैंने कभी पैसों में लेट की है जो तुम मुझे मछलियां देने में लेट करते हो? तुम्हारी वजह से मेरी दुकान मालिक और राडो चिड़िया का एतबार मेरे से उठ जाएगा। इस दफा भी तुमने 2 दिन लेट कर दिया ऑर्डर। मैं 2 दिन से अपनी दुकान मालिकन को टाल मटोल कर रहा था कि मेरा दिल नहीं जाने को। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, जब ठीक होऊंगा तो मछलियां ले आऊंगा, मगर मैं हर रोज बहाने नहीं लगा सकता। इसलिए मुझे ऑर्डर जल्दी दे दिया करो, वरना मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं मछलियां ले सकूं, और वो भी तुमसे कम कीमत पर। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। बस बस काजू कौवा, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, बहुत बातें सुना रहे हो मुझे। अमन में रहो काजू कौवा, ये तो मैं अपने काम का लिहाज कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना अभी मेरे लोग मेरे एक इशारे पर तुम्हारी जान ले लेंगे। ये ना हो कि हमें तुम्हें घर छोड़कर आना पड़े। अगर अपनी टांगों पर घर जाना चाहते हो तो अपनी जुबान को लगाम दो काजू कौवा। कबूतर डॉन नाम है मेरा। इस मंडी में परिंदा भी पर मेरी इजाजत से मारता है, और तुम हो के हवाओं में उड़ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब मछलियां आती हैं मैं तभी तुम्हें दे सकता हूँ, न उससे पहले न उसके बाद। ऑर्डर लेना है तो लो, वरना काम का टाइम है, जा सकते हो। और आइंदा इस मंडी का रुख मत करना, वरना इस मंडी में क्या, इस इलाके में भी नजर नहीं आओगे। अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि नहीं काजू कौवा। कबूतर डॉन की बातें सुनकर काजू कौवा उधर डर जाता है कि कहीं कबूतर डॉन के लोग काजू कौवा को मार ना दें, और वो परेशान भी हो जाता है। इसी हड़बड़ाहट में काजू कौवा कबूतर डॉन से आराम से बात करता है और कहता है, अरे कबूतर डॉन, आप तो बुरा मान गए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको बता रहा था कि मेरी दुकान मालकन बड़ी नकचड़ी है, मेरा सर खाई रखती है। जाओ मछलियां लाओ, जाओ मछलियां लाओ।
मैं तो खुद तंग आ गया हूँ। बस मैं तो दुख सुना रहा था आपको अपना, और हम गरीब कर भी क्या सकते हैं। मुझे माफ कर दें कबूतर डॉन, मेरी क्या मजाल के मैं आपके साथ जुबान लड़ाऊं। बस मेरी दुकान मालकन ने मुझे तंग ही बहुत किया हुआ है, न मुझे वक्त पर तनख्वाह देती है। कल भी मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने उसे कहा कि पैसे दे दो और तनख्वाह से काट लेना, मगर साफ इनकार कर दिया। और आज मुझे कहती है कि मछलियां ले आओ, वो भी बिना पैसों के, और आपको बोल दूं कि पैसे अगले महीने इकट्ठे दे देंगे। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं तो कबूतर डॉन से बिना पैसों के मछलियां नहीं ला सकता, मेरा नाम खराब हो जाएगा मंडी में। और कबूतर डॉन तो अपने काम में असूल पसंद कबूतर है, वो एक हाथ से माल देता है और एक हाथ से पैसे लेता है, मगर उसने जबरदस्ती भेज दिया आपके पास। अगर आपने मछलियां ना दी तो मुझ गरीब की नौकरी चली जाएगी। अगले महीने पैसे इकट्ठे दे देंगे आपको कबूतर डॉन, रहम करें मुझ पर। आ गई अकल ठिकाने काजू कौवा, आइंदा मेरे साथ इस तरह बात ना करना। और तुम्हारी मालकन तो बहुत ही जालिम है, लगता है खबर लेनी पड़ेगी। गरीबों के साथ बदसलूकी करती है, जो गरीब का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। मैंने इस मछली मंडी में बहुत से गरीब लोगों को नौकरी पर रखवाया है, तुम फिक्र ना करो नौकरी की। अगर वो निकाल देगी तो कबूतर डॉन किस लिए है, लेकिन उस चिड़िया की खबर लेनी पड़ेगी। ये चिड़िया गरीबों का पैसा खाती है, कबूतर डॉन के होते हुए। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बीवी का इलाज करवाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, वो ले जाओ और जाकर डॉक्टर को चेक करवाओ अपनी पत्नी को, और ये मछलियां भी ले जाना, इस चिड़िया को दे देना। पैसों का हिसाब मैं अगले महीने कर लूंगा। इस चिड़िया को बोल देना कि कबूतर डॉन हिसाब का बड़ा पक्का है, अगर पैसे ना दिए तो दुकान बंद करवा दूंगा इस चिड़िया की बच्ची की। बहुत शुक्रिया आपका कबूतर डॉन, मुझे लग रहा था मेरी पत्नी मर जाएगी अगर उसका वक्त पर इलाज ना हुआ तो, लेकिन आपने मेरी तो मदद करके मुझे गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, बहुत मेहरबानी आपकी। काजू कौवा तो आज से आपका गुलाम है, आपको जब कभी जरूरत हो तो बस एक आवाज देनी है आपने और आपका गुलाम हाजिर हो जाएगा। मैं आज ही अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा ताकि उसका इलाज करवा सकूं। उसके अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में, अगर वो भी मर गई तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा। और इस चिड़िया को तरस ही नहीं आता हमारे हालात पर, और एक आप हैं कबूतर डॉन, इतने रहम दिल। काजू कौवा राडो चिड़िया के पैसे दिए हुए छुपा लेता है और कबूतर डॉन से मुफ्त मछलियां ले आता है, और कबूतर डॉन कौवे के इलाज के लिए भी काजू कौवा को पैसे देता है। कबूतर डॉन को काजू कौवा की चालाकी का कुछ पता ही नहीं चलता, और वहाँ राडो चिड़िया भी काजू कौवा को पहचान नहीं पाती, और वो गंदे पानी की मछलियाँ अपनी दुकान पर बेचती है, मगर वो यही समझती है कि काजू कौवा चकोर मछुआरे से ही मछलियाँ लेकर आता है। आ गए काजू कौवा, कहाँ थे तुम, और ये सब सामान कहाँ से लाए हो? ये मछलियाँ तुम घर ले आए हो फिर? ये पैसों का बैग तो बड़ा भारी लग रहा है। तुम भी जब से राडो चिड़िया की दुकान पर लगे हो सही माल इकट्ठा करके लाते हो,
तुमने तो चंद महीनों में ही इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है अपनी समझदारी से। मुझे लगता है राडो से जल्दी तो हम अमीर हो जाएंगे। आज वैसे रकम कुछ ज्यादा नहीं, मुझे तो बैग पिछले महीने से ज्यादा बड़ा लग रहा है। इस महीने कौन सी चाल चली है तुमने काजू कव्वा? गोपी कव्वी, तुम तो जानती हो मैं चकोर से नहीं कबूतर डॉन से गंदे पानी की मछलियां कम कीमत पर ले आता हूँ और राडो से पैसे पूरी कीमत और साफ पानी वाली मछलियों के लेता हूँ। ऐसे में आधी रकम तो हमें बच जाती है, इसलिए मैं राडो को डीलिंग वाला काम नहीं करने देता। आज कबूतर डॉन ने मुझे गुस्सा दिला दिया, ऑर्डर भी लेट देता है और फिर राडो मुझे चकोर के पास मछलियां लाने का कहती है, मगर मैं मछलियां तब ला सकता हूँ जब कबूतर डॉन के पास गंदे पानी की मछलियां आती हैं। मैंने जब कबूतर डॉन को खरी खरी सुनाई तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। फिर मैंने भी ऐसी राम कहानी सुनाई उसे कि मुझे हाथ से पैसे देकर भेजे उसने, और मैंने उसे मछलियों के पैसे भी नहीं दिए। मुझे मारने की धमकी दी थी ना उसने। अब निकलवा ले पैसे जहां से मर्जी। अब मछलियां दो दो गोपी कव्वी, ताकि इनमें से स्मेल ना आए गंदे पानी की। फिर मैं इसे दुकान पर लेकर जाता हूँ। इस बार हमें डबल मुनाफा हुआ है गोपी कव्वी। इसके बाद गोपी कव्वी मछलियां धोने चली जाती है और वहां से राडो की दुकान पर चकोर मछुआरा आ जाता है और चकोर राडो से शिकायत करता है कि कैसी हो राडो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। मैंने सोचा तुम्हारी दुकान पर खुद ही चक्कर लगा लूं। तुम तो आती ही नहीं हो। मैंने सोचा भूल गई हो शायद, या दुकान अब नहीं चलाती तुम। मुझे लगा तुमने दुकान बंद कर दी, जो अब मुझसे मछलियां नहीं लेती। मेरी मछलियां अच्छी नहीं होती क्या, या मैं दाम ज्यादा लेता हूँ? मुझे लगता है तुम्हें कोई बेहतर मछुआरा मिल गया है मेरे से। अगर मेरे से मछलियां नहीं लेनी थी तो मुझे बता तो देती कम से कम। राडो चिड़िया चकोर की बातें सुनकर बहुत परेशान और हैरान हो जाती है कि चकोर क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो चकोर से ही मछलियां लेती है। चकोर, मुझे ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपसे ही मछलियां लेती हूँ। अभी भी काजू कव्वा को सुबह से आपके पास भेजा है मछलियां लेने के लिए। दुकान पर काम ज्यादा होता है, इसलिए पिछले महीने भी खुद नहीं आ सकी तो काजू कव्वा को भेज दिया था। मगर मैं तो आपकी बातें सुनकर हैरान हूँ। ये देखें, आपकी दुकान से लाई हुई मछलियां हैं, लेकिन ग्राहक शिकायत करते हैं कि अब इन्हें पकाते हुए इनमें से स्मेल आती है। मैं तो आपसे इसीलिए मछलियां लेती हूँ क्योंकि साफ पानी की होती हैं, मगर आजकल बहुत स्मेल आती है, ग्राहक ये बोल रहे हैं। राडो, मेरे पास तो कोई काजू कव्वा नहीं आया और ये मछलियां मेरी नहीं हैं। मैं अपनी मछलियों को अच्छे से पहचानता हूँ। मैं खुद पकड़ता हूँ मछलियां और मैं ही ना पहचानूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगा तुम अब किसी और से मछलियां लेती हो, इसलिए तुम्हारा ऑर्डर नहीं आया मेरे पास। तो कोई काजू कव्वा आया ही नहीं कभी मेरे पास। लगता है तुम्हें कोई बुद्धू बना रहा है राडो। ये तो गंदे पानी की मछलियां लग रही हैं, वाकई इनमें बहुत स्मेल है। इतने में राडो की दुकान पर कबूतर डॉन आ जाता है ताकि वो राडो से अपने पैसे ले सके और पूछे कि वो गरीबों को तंग क्यों करती है। राडो चिड़िया, तुम हो ना? यही है मछली की दुकान। काजू कव्वा मेरे से मछलियां ले गया था, मगर बता रहा था तुमने पैसे नहीं दिए मछलियों के, और बोला है कि अगले महीने दोगी, और उसकी बीवी बीमार है तो तुमने उसे पैसे भी नहीं दिए और तनख्वाह भी उसे टाइम पर नहीं देती।
जो गरीबों का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तुम गरीबों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। समझ आई राडो चिड़िया? मछलियां तो तुम्हें मिल गई होंगी, अब पैसे भी दो मेरे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कभी मछलियां नहीं ली। मैं तो चकोर मछुआरे से मछलियां लेती हूँ। और चकोर मछुआरा बता रहा है कि काजू कौवा उनसे मछलियां लेने जाता ही नहीं। तो फिर काजू कौवा है किधर? और गरीबों की बात कर रहे हैं आप? तो काजू कौवा को हर कोई काम से निकाल देता है, तो मैंने उसको काम पर रखा है। वो मेरे बहुत सारे पैसे खा चुका है, ये बोलकर के तनख्वाह से कटवा दूंगा। और तनख्वाह भी पूरी ले जाता है। उसकी बीवी तो बिल्कुल अच्छी भली है। काजू कौवा सुबह से पैसे लेकर गया है, अभी तक मछलियां लेकर नहीं लौटा। राडो और कबूतर डॉन, मुझे सब समझ आ गया है। ये काजू कौवा हमें बेवकूफ बना रहा है। इसने बहुत बड़ा खेल खेला है हमारे साथ। ये तो हम सबकी रोजी बंद करवाने के पीछे लगा है। ये तो मैं आज राडो की दुकान पर आ गया तो पता चल गया, वरना मैं राडो बेचारी को गलत समझ रहा था। काजू कौवा ने हम सबके साथ गलत किया है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसने हम सबको धोखे में रखा और हम लोगों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। अच्छा तो ये बात है। ये तो काजू कौवा मुझे पैसे देने की बजाय मेरे हाथ से भी पैसे ले गया। इसको तो मैं नहीं बख्शूंगा। कितनी चालाकी से ये मुझे बेवकूफ बना गया। ऐसा चालाक पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। इसको अब बताना पड़ेगा कि कबूतर डॉन आखिर है कौन। इतने में काजू कौवा उधर आ जाता है और कहता है, ये लो राडो चिड़िया, मछलियां ले आया हूँ मैं तुम्हारी मछलियां साफ पानी वाली। आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है? सब खैर तो है? मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? काजू कौवा नजर दौड़ाता है तो वो देखता है कि वहां चकोर और कबूतर डॉन भी मौजूद थे। काजू कौवा डर जाता है। फिर राडो बोलती है, काजू कौवा, ये आपने क्या किया हम लोगों के साथ? आपने हम सबको बेवकूफ बनाया। आप मुझे गंदे पानी की मछलियां लाकर देते रहे। जब आपके पास कोई काम नहीं था तो मैंने आपको काम पर रखा था और आपने मुझे ही धोखा दिया। और आप हर जगह पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं आपको तनख्वाह नहीं देती। आप तो तनख्वाह के अलावा मेरे कितने पैसे खा चुके हैं। मैंने आपकी और गोपी कौवी की मदद की और आप लोगों ने मेरा ही नाम खराब करने की कोशिश की। कबूतर डॉन को काजू कौवा पर इतना गुस्सा आता है कि वो मछलियां काटने वाले ही चाकू से काजू कौवे का सर काट देता है। राडो अपनी दुकान चलाने के लिए चकोर मछुआरे से ही मछलियां साफ पानी की लेना शुरू कर देती है और उनका कारोबार अच्छे से चलना शुरू कर देता है। काजू कौवा को अपने बुरे काम की सजा मिल जाती है। और आज आपने सीखा इस कहानी से कि झूठ आखिर एक दिन पकड़ा ही जाता है, जैसा कि काजू कौवा का। अब जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।